Hello everybody. In this lecture we will discuss about complex frequency. Complex frequency is a generalized frequency which is used to represent the variation in the amplitude as well as to represent the oscillations of the waveform. Complex frequency we can represent like Sn equals sigma n plus j omega n. As you are seeing, the complex frequency has two components, one real part and one imaginary part. Real part of the complex frequency जो कि सिग्मा एन से डिनोट किया गया है is known as Napier frequency. Napier frequency means real part of the complex frequency. ये डिस्क्राइब करता है variation in the amplitude of the waveform. And imaginary part which is omega n, it is known as radian frequency. Radian frequency जैसा कि आप जानते हैं it is used to describe the oscillations of the waveform. It means using complex frequency we can describe the variation in the amplitude as well as oscillations of the waveform. We can explain complex frequency by taking an example more effectively. So we will take example to explain complex frequency. Suppose that we have a function f of t equals kn e the power sn t, where Sn is the complex frequency and it has sigma n real component, real frequency, and j omega n imaginary part of the frequency. We can describe the effect of complex frequency on the waveform of the function kn e the power sn t by taking three cases of the complex frequency. So case 1, in this case we will take radian frequency 0, omega n equals 0. So Sn will be sigma n plus j into omega n, means sigma n plus j into 0. Sn equals sigma n. It has only Napier frequency. So in this case the function f of t kn e the power sn of t can be written as kn e the power
at the place of Sn we will write sigma n t. Now the value of sigma n means Napier frequency may be greater than 1, sigma n may be 0, sigma n may be less than 0. There is 3 possible cases for sigma n. So we will draw the waveform for all these cases. We will draw the waveform of the function f of t for all these 3 cases. F of t equals kn e the power sigma n t. If sigma n is positive means greater than 0. If sigma n is greater than 0. T 0. This is the function kn e the power sigma n t. First case I am taking sigma n equals 0. If sigma n 0, then value of this function kn e the power sigma n t, here e the power 0. If we put sigma n equals 0, then e the power 0 into t means e the power 0. So we will get the value equals kn. Ft equals kn e the power 0 into t, so it will be kn. In this case, the value of function will be kn for all time for t greater than 0. So यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड kn होगा. Next case, if we take sigma n greater than 0, sigma n greater than 0, इस केस में फंक्शन विल बी kn into e the power sigma n t and e the power पॉजिटिव मिलेगा अगर सिग्मा n ग्रेटर देन 0 है. सो अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ई द पावर अगर पॉजिटिव है तो हमें यहां एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड सिग्नल मिलेगा. ये तो सिग्मा n इक्वल 0 के लिए है और ये सिग्मा n ग्रेटर देन 0 के लिए है. अगर सिग्मा n पॉजिटिव है तो हमें एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग सिग्नल मिलेगा जिसका कि मिनिमम वैल्यू kn होगा और वो टाइम t इक्वल्स 0 पे होगा. तो इस तरह से वेवफॉर्म मिलेगा. अगर सिग्मा n लेस देन 0 है तो हमें ई द पावर निगेटिव मिलेगा. अगर सिग्मा n निगेटिव है, लेस देन 0 है तो ई द पावर निगेटिव. इस केस में हमें एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल मिलेगा. तो यहां हमें एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल इस तरह से मिलेगा. ये केस होगा सिग्मा n लेस देन 0. तो इस तरह से हमने जब रेडियन फ्रीक्वेंसी 0 है, ओनली नेपर फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है,
कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी में किसी फंक्शन में, तो किस तरह से सिग्नल का वेरिएशन हो रहा है ये शो किया इस प्लॉट में। अब हम केस 2 लेंगे जिसमें हम नेपर फ्रीक्वेंसी को 0 करेंगे, ओनली रेडियन फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हुए हम वेवफॉर्म का वेरिएशन देखेंगे। केस 2, if sigma n equals 0, Napier frequency is 0. In this case, Sn will be 0 plus j omega n. So function we can write f of t kn e the power Sn t. So it will be kn e the power j omega n t. तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, kn e द पावर j ओमेगा एन टी को हम लिखेंगे cos ओमेगा एन टी प्लस j साइन ओमेगा एन टी, cos ओमेगा एन टी प्लस j साइन ओमेगा एन टी। It will be kn cos ओमेगा एन टी प्लस j kn साइन ओमेगा एन। सो इस केस में हम देख रहे हैं कि अगर नेपर फ्रीक्वेंसी 0 है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी में केवल रेडियन फ्रीक्वेंसी है, तो हमें जो वेवफॉर्म मिल रहे हैं वो वेवफॉर्म साइनसॉइडल वेवफॉर्म होगा, ओनली साइन टर्म, कॉस टर्म और साइन टर्म प्रेजेंट है। हमें जो वेवफॉर्म मिलेगा वो साइनसॉइडल वेवफॉर्म होगा जिसका कि एम्पलीट्यूड फिक्स होगा, एम्पलीट्यूड kn होगा। सो इन दिस वे वी कैन से if in a function if Napier frequency is 0, only radian frequency is present, then the function will oscillate at a fixed frequency with fixed amplitude. नेक्स्ट केस 3 लेंगे जिसमें कि नेपर फ्रीक्वेंसी और रेडियन फ्रीक्वेंसी दोनों हो, तब देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। केस 3 में हम नेपर फ्रीक्वेंसी और रेडियन फ्रीक्वेंसी दोनों कंसीडर करेंगे प्लस j ओमेगा। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ टी kn e द पावर एस एन टी kn e the power, at the place of Sn we will write this sigma n plus j omega n t. We can write kn e the power sigma n t into e the power j omega n t. So function will be kn e the power sigma n t
इसको हम एक्सपेंड करेंगे ई द पावर जे थीटा से, तो यहां लिख सकते हैं cos ओमेगा एन टी प्लस जे साइन ओमेगा एन टी. So in this way we can write ft equals kn e the power snt equals kn e the power sigma nt into cos omega nt प्लस ये kn e the power sigma nt मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ j kn e the power sigma nt sin ओमेगा एन टी. अब इस एक्सप्रेशन से हम kn कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल के दोनों तरफ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई द पावर एस एन टी इक्वल्स ई द पावर सिग्मा एन टी कास ओमेगा एन टी प्लस जे ई द पावर सिग्मा एन टी साइन ओमेगा एन टी. ये एक्सप्रेशन कंटेन कर रहा है दो पार्ट, एक रियल पार्ट जो कि ये है, और एक इमेजिनरी पार्ट. सो अगर हम लिखना चाहें रियल पार्ट ऑफ ई द पावर एस एन टी, तो हम लिख सकते हैं इट इज ई द पावर सिग्मा एन टी कास ओमेगा एन टी. Similarly, imaginary part of e the power s and t can be written as this term e the power sigma and t sin omega and t. अब हम इस रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई द पावर एस एन टी को प्लॉट करेंगे और इसके वेव फॉर्म की एनालिसिस करेंगे. तो पहले हम इमेजिनरी पार्ट देखते हैं. इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई द पावर एस एन टी इक्वल्स ई द पावर सिग्मा एन टी साइन ओमेगा एन टी. इसमें हम देख रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई द पावर एस एन टी दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा साइनसॉइडल फंक्शन है. साइनसॉइडल फंक्शन जिसका की फ्रीक्वेंसी फिक्स फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एन, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिपेंड करेगा सिग्मा एन के वैल्यू पे. सिग्मा एन अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और वो साइनसॉइडल सिग्नल से मल्टीप्लाई होगा. तो इस केस में जो हमें वेव फॉर्म मिलेगा t के 0 वैल्यू के लिए तो हमें एम्पलीट्यूड 1 मिलेगा. ई द पावर 0 होगा, ई द पावर 0 मीन्स 1, तो हमें साइन ओमेगा एन टी होगा फंक्शन की वैल्यू,
और उस केस में एम्पलीट्यूड 1 होगा। यहाँ ये फंक्शन है यहाँ पे फंक्शन है e द पावर सिग्मा एन टी कॉस ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी। e द पावर सिग्मा एन टी साइन ओमेगा एन। तो अगर t की वैल्यू हम 0 पुट करें तो ये साइन 0 होगा और यहाँ e द पावर 1 होगा। मतलब साइन सिग्नल 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो e द पावर सिग्मा एन टी पे डिपेंड करेगा। सिग्मा एन पॉजिटिव है इसलिए एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग मिलेगा, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। e द पावर सिग्मा एन टी इस साइन सिग्नल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो साइन सिग्नल, अगर ये e द पावर सिग्मा एन टी कंपोनेंट इसमें नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं होता, एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिलता, वो अब कांस्टेंट ना मिल करके हमें इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिलेगा और ये इस तरह से एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होगा। जीरो से स्टार्ट होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स होगी रेडियन फ्रीक्वेंसी, लेकिन एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग मिलेगा। इस तरह से हमें वेव फॉर्म मिलेगा। ये जो ऑसिलेशंस हैं रेडियन फ्रीक्वेंसी ये पे डिपेंड करेंगे ये ऑसिलेशंस, और एम्पलीट्यूड का इंक्रीजनेस सिग्मा एन के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसी तरह से अगर सिग्मा एन लेस देन 0 है, निगेटिव है, तो यहाँ e द पावर निगेटिव होगा। e द पावर निगेटिव होगा तो हमें डैम्प्ड सिग्नल मिलेगा। इसमें तो इंक्रीजिंग सिग्नल मिल रहा है, लेकिन उसमें हमें डैम्प्ड सिग्नल मिलेगा और वेवफॉर्म इस तरह से होगा। ये एम्पलीट्यूड घटता जाएगा एक्सपोनेंशियली डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ सिग्मा एन, और इस तरह से हमें डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिलेगा। दिस इज फॉर सिग्मा एन लेस देन 0, और इसके पहले जो हमने ड्रा किया था वो सिग्मा एन ग्रेटर देन 0 था। अगर सिग्मा एन 0 है, इस केस में हमें फिक्स एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिलेगा, क्योंकि e द पावर 1 हो जाएगा। उस केस में फंक्शन की वैल्यू साइन ओमेगा एन टी होगी और हमें एक फिक्स एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिलेगा। ये है सिग्मा एन इक्वल्स 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन का एम्पलीट्यूड है वो सिग्मा एन पे डिपेंड कर रहा है, नेपर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। सिग्मा एन ग्रेटर देन 0 है तो हमें इंक्रीजिंग सिग्नल मिल रहा है, लेस देन 0 है तो डैम्प्ड सिग्नल मिल रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, और अगर 0 है तो हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का साइन वेव मिल रहा है। इसी तरह से हम इमेजिनरी ई द पावर एस एन टी के लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये इमेजिनरी के लिए हमने प्लॉट किया है। इसी तरह से हम रियल पार्ट ऑफ द ई द पावर एस एन टी के लिए वेवफॉर्म प्लॉट कर सकते हैं। So real part of the e the power SNT is
e the power sigma nt cos ओमेगा nt। इस केस में भी 3 केसेज हो सकते हैं, सिग्मा एन ग्रेटर देन 0, सिग्मा एन लेस देन 0 एंड सिग्मा एन इक्वल्स 0। हम सिग्मा एन ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। व्हेन सिग्मा एन इज ग्रेटर देन 0, सो ई द पावर पॉजिटिव होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर ये 0 है, t की वैल्यू 0 है, यहां से स्टार्टिंग है, तो ई द पावर 0 ये 1 होगा और हमें cos ओमेगा nt का सिग्नल मिलेगा, जिसका कि एम्पलीट्यूड 1 होगा। मीन्स ये cos सिग्नल मिलेगा, तो यहां से स्टार्टिंग होगी और जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे, सिग्मा एन पॉजिटिव है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग सिग्नल मिलेगा। ये सिग्मा एन ग्रेटर देन 0 के लिए हमने प्लॉट किया है। तो जैसे हमने इमेजिनरी पार्ट के लिए और प्लॉट किया था सिग्मा एन लेस देन 0 के लिए, सिग्मा एन इक्वल 0 के लिए, सेम वे में हम इस रियल पार्ट के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के 3 केसेस लिए। एक में नेपर फ्रीक्वेंसी 0 था, एक में रेडियन फ्रीक्वेंसी 0 था और तीसरे केस में दोनों फ्रीक्वेंसी इंक्लूड थी, नेपर एंड रेडियन, और उनके इफेक्ट हमने वेवफॉर्म पे डिस्कस किए। In this way we can say the complex frequency has 2 parts, real part and imaginary part. Real part is known as Neper frequency, which describes the exponential rise, exponential decay or no variation in the amplitude of the signal, and radian frequency, which is the imaginary frequency, describes the oscillations of the signal. In this way, we can say the complex frequency is the generalized frequency which can represent the variation in the amplitude as well as oscillations of the signal. Thank you.